Hello everyone, how are you? So today we are going to start one of the most important chapter of physics, and it is motion in a straight line. So let us try to understand the topics. First of all, mechanics, then frame of reference, rest of motion, types of motion, motion in 1D, 2D and 3D, higher order thinkings, कुछ questions होगा और point object. So we will discuss one by one. First of all, as it is the part of mechanics, you are going to start mechanics. So it is better to understand what is mechanics. Mechanics क्या है समझना पड़ेगा. So let us start our today's class. What is mechanics? What are the branches of mechanics? Because you know, in your class 11, mechanics playing a major role. So many topics are there under mechanics. So समझना पड़ेगा ये mechanics क्या है, क्यों इतना important है, और कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है ये मैकेनिक्स के अंडर में, ये सब समझना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैकेनिक्स. बहुत अच्छे तरह से समझना, क्योंकि टॉपिक तब समझ में आएगा जब वो प्रैक्टिकल लाइफ का कोई एग्जाम्पल के साथ खुद समझना पड़ेगा. सो द थिंग इज दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एट योर ओन लैंग्वेज. कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो. So what is mechanics? See, ऐसे तो definition books में रहता है कि the branch of physics which deals with force, influence of force. Now I'm giving the definition in different way. Try to understand. जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, two boys are there, right? Two boys are there. Now they are exerting force on one another. Now as one is exerting force on the other, जैसे कि मैं दूसरे का ऊपर फोर्स दे रहा हूं, then due to this force उसका क्या हो रहा है, that is your mechanics. Means response of any material body due to the mechanical disturbance. If there is any mechanical disturbance on any material body, then what will happen? This is our mechanics. जैसे कि ये मान लो इसका नाम है क्या दो, ये विकास है और इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, जैसा कि विकी है. Now ये विकास and Vicky, one is exerting force on the other. Both are mass body, both are material body. Now because of the force on one due to the other, जैसे विकास विकी का ऊपर फोर्स दे रहा है. Now विकी का क्या होगा, what will happen, whether he will move or will remain in position? So many questions are there in your mind, and all the answers will be given by mechanics. Mechanics वो ही करेगा जो तुम्हारा मन में है. तुम्हारा मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे, सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा? This is your mechanics. So I repeat it again. What is mechanics? Mechanics, the branch of physics which deals with force and influence of force. Means response of any material body due to the external mechanical disturbance. If I am applying force on you, any other body applying force on you, then what will happen to you will be discussed in mechanics. Understand that? Okay. Now let us see the types of mechanics. Mechanics क्या है? मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या लिखा? रेस्पॉन्स of any material body, response of any material body due to the mechanical disturbance. Okay, now let us see the classification of mechanics.
ऐसे तो बेसिकली दो टाइप का ही मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का दो ही ब्रांचेस है, एक है स्टैटिक्स and another is dynamics, statics and dynamics, broadly दो टाइप से, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, ऐसा नहीं स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, वो बहुत सारा बुक्स में रहता है लेकिन ये नहीं, स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. नाउ व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ द फोर्स, राइट? स्टडी ऑफ द फोर्स विदाउट द मोशन, मीन्स फोर्स इज देयर ऑन द ऑब्जेक्ट बट देयर इज नो मोशन. ऐसे कैसे हो सकता है? फोर्स होगा, मोशन नहीं होगा. यस, मेरा ऊपर भी अभी फोर्स है, तुम्हारा ऊपर भी फोर्स है. So many forces are acting on you, but net force on you is zero, and which we call the equilibrium condition of the object. जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट? इसका ऊपर इधर से भी फोर्स आ रहे, यहां से भी फोर्स आ रहे, यहां से भी फोर्स आ रहे, यहां से भी फोर्स आ रहे. इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन यू, इनफाइनाइट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन मी ऑल्सो, बट नेट फोर्स is zero and is known as equilibrium condition and is said to be in equilibrium condition and is known as statics. So statics is the branch of mechanics which deals with the force on the object without the motion of the object. There is no motion of the object, only the force. ऐसा क्या है? मेरा ऊपर भी फोर्सेस हो रहा है लेकिन मैं अभी रेस्ट में हूं, मेरा मोशन नहीं है. रेस्ट एंड मोशन का बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा. सो की पॉइंट्स क्या है? जैसे कि कोई ब्रिज फ्लाईओवर, तो इसका ऊपर बहुत सारा एक के बाद एक व्हीकल जा रहे. अभी ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ऊपर कितना फोर्सेस दिया जा रहा है. सो मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग बट स्टिल वो ब्रिज क्या है? स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब इट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक्स जहां पर सो मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग बट स्टिल इट इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो. समझ में आया? नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो तुम्हारा ये क्या है? स्टैटिक्स है, मतलब ये मोशन में नहीं है, इट इज नॉट इन मोशन. नाउ डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स, देयर इज ए नेट फोर्स, देयर इज ए नेट फोर्स आएगा, और जिस नेट फोर्स के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और यहां पर ऑब्जेक्ट इज इन क्या? रेस्ट? नो, ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. सोच रहे होगा सर ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन भी जो है, रेस्ट भी यही है, लेकिन ऐसा नहीं है. रेस्ट एक चीज होगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन दूसरा चीज होगा. सो विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. सो ये क्या है कि ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब नेट फोर्स जीरो, तब हो रहा है ये स्टैटिक्स. और अगर देयर इज ए नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहे, ऑब्जेक्ट मोशन में हो रहा है, देन इट इज योर डायनामिक्स. तो अभी मैं फोर्स दिया और देने के बाद उसका मोशन ही नहीं हुआ, तो मैं इसका क्या स्टडी करूं? स्टडी करने का कुछ नहीं है. सिर्फ फोर्स ही स्टडी कर पाओगे. उसका वेलोसिटी नहीं है, उसका एक्सीलरेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है. तो यहां पर तो ये यहां पर स्टॉप हो रहा है स्टैटिक्स का, और फर्दर कोई ब्रांचेस नहीं है. हाँ? उसका चेन यहां पर ही खत्म हो गया. हाँ, समझ में आया ना? सो अभी here you see डायनामिक्स का दो हो रहा है. एक है काइनेमेटिक्स, ध्यान से सुनो, काइनेमेटिक्स, और ये है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. वन इज काइनेमेटिक्स एंड अनदर इज काइनेटिक्स. अभी समझना पड़ेगा ये काइनेमेटिक्स क्या है और काइनेटिक्स क्या है. Now you see, already I told you that dynamics means what? Motion of the object because of the applied force. देने के बाद जो मोशन होगा,
तब इसको क्या बोल रहे, डायनामिक्स। अभी डायनामिक्स का दो पार्ट आ रहे, एक क्या है काइनेमेटिक्स, वेयर काइनेमेटिक्स मीन्स ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस किया जाएगा विदाउट द कॉज ऑफ मोशन। हियर वी विल डिस्कस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन, सब कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस नहीं करूंगा क्या, नहीं करूंगा फोर्स, जिसके लिए वो हुआ उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूं, तो इसका नाम क्या था, विकास, ये विकास था और ये विकी। अभी क्या है कि जब विकास ने विकी को फोर्स दिया और विकी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट, एस, कितना वेलोसिटी, वी, कितना एक्सीलरेशन, ए, कितना टाइम लगा, टी, ये सारे कुछ कहां पर डिस्कस होगा, ये काइनेमेटिक्स में डिस्कस होगा, काइनेमेटिक्स में। लेकिन विकास के बारे में कुछ नहीं डिस्कस होगा, ओनली विल डिस्कस अबाउट विकी, विकी का ऊपर कितना टाइम से, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना वेलोसिटी, कितना एक्सीलरेशन, एवरीथिंग रिगार्ड ओनली फ्रॉम अबाउट विकास, विकी। मतलब जिसने मारा, विकास ने मारा, विकास के बारे में कुछ स्टडी नहीं करूंगा, विल नॉट स्टडी एनीथिंग अबाउट द कॉज। ये विकास क्या है, कॉज, ये क्या है कॉज, और ये क्या है इफेक्ट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी द कॉज, और कॉज जहां पर स्टडी होगा, कॉज अगर कॉज भी इंक्लूड किया जाए, अगर कॉज भी इंक्लूड किया जाए, अगर कॉज भी इंक्लूड किया जाए तो इसको कहते हैं काइनेटिक्स। समझ में आ गया। अगर इफ वी कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन along with study of motion, then we will call it is kinetics. समझ में आ गया। मीन्स काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with the motion of the object without the cause of motion, and kinetics the branch of physics, branch of dynamics which deals with the motion of the object along with the cause of motion. Understand ना, understand? ओके चलो, सो ये हुई ब्रॉडली जो मैकेनिक्स का पार्ट। ऐसे तो मैकेनिक्स बोलने से क्लासिकल मैकेनिक्स आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, सो मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स बोलूंगा, तो ये सब नहीं है। यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हो क्लास 11 में, वट एवर कमिंग इज आवर स्टैटिक्स, डायनामिक्स, डायनामिक्स से दो, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। हाँ, ऐसा है कि स्टोरी है, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी ऐसा है कि वो फर्स्ट उस दिन सुनाया एक स्टोरी, आज ऐसे कुछ सुनाता है जैसे कि राजा रानी का स्टोरी। तो ऐसा कि ये है राजा, सुन लो, ये राजा, ये मैकेनिक्स, ये राजा है, ठीक है। तो इससे मेरा एक आ गया ऐसा, इसका एक, ये फर्स्ट बॉय जो है लड़का और ये सेकंड लड़का। सो जैसा समझ लो, ये जस्ट स्टोरी है, उसका सीरियसली नहीं लेना। तो ये लड़का, इसका शादी नहीं हुआ, तो ये यहाँ पर स्टॉप हो गया। हाँ? और इसने शादी किया, तो इसका ये, अरे भूल गया मैं, ये इसका नाम ही तो विकास है और इसका नाम विक्की है। और विक्की जब शादी किया, उसका फिर दो आ गया, एक है काइनेमेटिक्स और एक है काइनेटिक्स। समझ में आ गया। ओके चलो, सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अच्छे तरह से समझना, कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म करना। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे फिजिक्स में नहीं, डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम जब भी हो, जहां पर भी हो, एवरी टाइम यू आर यूजिंग दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शायद कभी हमें देखो, फिजिक्स तो हर टाइम पे, मॉर्निंग टू इवनिंग फिजिक्स ही अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कब फिजिक्स में अप्लाई करना है, वही बात है। और वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, कब, कहाँ, कैसे फिजिक्स को अप्लाई कर रहे। समझ में आया ना। मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर, सभी जगह पे फिजिक्स ही अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कहाँ पर फिजिक्स में अप्लाई कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि समझना। सो क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें मैं फोन किया और फोन करके मैं बोला कि तुम कहाँ पर हो, तो तुम कहाँ पर हो, तुम बोलोगे सर मैं हॉस्पिटल के पास हूँ, ये हॉस्पिटल का नाम है, ये हॉस्पिटल का गेट में हो, सामने हो, गेट के सब पास।
नहीं तो बोला कि सर मैं तो वो सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल का गेट के पास। तो क्या है, तुम किसी का रेफरेंस दे रहे हो, हॉस्पिटल का गेट के सामने, सिनेमा हॉल का गेट के सामने। या बोला कि कोई एक शॉपिंग मॉल है, एबीसी शॉपिंग मॉल, वो एबीसी शॉपिंग मॉल का साइड में खड़ा हो। तो जब भी तुम्हारा पोजीशन लोकेट करना पड़ेगा, you have to take the help of a reference, and that reference is known as frame of reference। means जिसका रिस्पेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन लोकेट किया जा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी किया जा रहा है, that is your frame of reference। the frame of reference is the place with respect to which the motion of the object is studied। we'll discuss its motion, we'll discuss its location with the help of a place or keeping a place standard। एक प्लेस को स्टैंडर्ड मान के कि ये प्लेस स्टैंडर्ड है। जैसा मैं और भी एक एग्जांपल दिया, मैं बोला कि आई एम 1 मीटर अवे, नो मीनिंग जब तक मैंने बोला नहीं आई एम 1 मीटर अवे फ्रॉम दिस वॉल और आई एम 1 मीटर अवे फ्रॉम दैट वॉल, दैट इज टू लोकेट माई पोजिशन। आई हैव टू टेक द हेल्प, I have to take the help of this wall or that wall, or I have to take the help of this camera or any surroundings। means जैसे कि मैं ये wall को मैं स्टैंडर्ड पकड़ा कि इस wall से मैं 1 मीटर अवे में हूँ, 1 मीटर अवे, या from that wall I am 1 मीटर अवे। that is keeping this wall or that wall as standard, I am locating my position। means I am using the help of frame of reference। जब तुम बोलते हो ना कि सर मैं घर में हूं, तभी you are using the frame of reference। तुम्हारा घर को तुम सिस्टम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के बोल रहे हो आई एम इन माई एट माई होम, ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। और जब बोल रहे कि मैं एक स्कूल में हूं, तब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज कर रहे, दैट इज यू आर यूजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब भी तुम्हारा पोजिशन लोकेट करना चाहते हो। शायद तुमको तब समझ में नहीं आ रहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हेल्प ले रहे हो। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस व्हाट, जिसका रिस्पेक्ट से किसी का मोशन हम लोग डिटरमाइन करते या मोशन उसका ऑब्जेक्ट का लोकेशन देखते। सो आई रिपीट इट अगेन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्कस्ड, स्टडीड, व्हाटएवर में बी। समझ में आ गया? ये हुई हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी इनर्शियल आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो एक चीज है, यहां पर ध्यान से सुनो, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, कभी अगर तुम्हारा कोई भी रेफरेंस का हेल्प, रेफरेंस के बारे में कहीं पर पूछा नहीं जाए, अगर फिजिक्स में कहीं पर, तो तुमको पकड़ना पड़ेगा अर्थ इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ इज रेफरेंस फ्रेम। सो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यू हैव टू कंसीडर अर्थ एज रेफरेंस फ्रेम। जैसा मैं बोल सकते हो आई एम इन मोशन, आई एम ऑल्सो एट रेस्ट, कुछ भी मैं बोल सकता हूं। हाँ? तो यह हो है कि मैं किसका हेल्प ले रहा हूं, वेदर आई एम कंसिडरिंग अर्थ और कंसिडरिंग मून और कंसिडरिंग जुपिटर। कैसे, वो भी समझाऊंगा धीरे धीरे। तो रेस्ट एंड मोशन में। हाँ? तो चलो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ गया ना। चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, समझ में आया ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है फिर? ओके, तुम रेस्ट में हो या मोशन में हो? आर यू एट रेस्ट या मोशन? तुम बोलोगे सर मैं तो रेस्ट में हूँ। हाँ, मैं बोलूंगा नहीं यू आर इन मोशन। तुम बोलोगे सर फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते पागल बन गया। हाँ, पागल तो कहेगा ही। सो क्या है कि रेस्ट में हो या मोशन में हो, फिर भी एक बार बोल दो यू आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो बोलोगे सर रेस्ट में हूँ, मैं तो घर में बैठा हूँ तो रेस्ट में है। हाँ, लेकिन रेस्ट में है या नहीं है ये तो फिजिक्स ही बताएगा, है ना। तो चलो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये रेस्ट क्या है एंड मोशन क्या है, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। लेकिन इसके पहले एक बात ध्यान से सुन लो, नथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज एन एब्सोल्यूट रेस्ट। कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। मतलब ना तो मैं रेस्ट में हूं ना तो तुम एब्सोल्यूट रेस्ट में हो, दुनिया मोशन में है बिकॉज दिस यूनिवर्स इज इन मोशन। नथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट। रेस्ट अगर है तो किसी एक फ्रेम का प्रेफरेंस का रेस्पेक्ट से। मैं अगर रेस्ट हूं तो तुम्हारा इस वर्ल्ड का रेस्पेक्ट से रेस्ट हूं,
इसका रेस्पेक्ट से रेस्ट हूँ, ये वॉल का रेस्पेक्ट से रेस्ट हूँ, ये कैमरा का रेस्पेक्ट से रेस्ट हूँ, लेकिन आई एम नॉट एट रेस्ट with respect to any other frame of reference like moon, like sun, like Jupiter, like any other celestial objects. Try to understand ये क्या मैं बोल रहा हूँ, समझो. Try to understand. जैसे ये दो, ये है, इसका नाम है लिपिका, ज़्यादा देखना नहीं इसको, ये है लिपिका, और ये है दीपिका, सुना मैना, ये लिपिका और ये दीपिका, राइट. नाउ जब दीपिका का रेस्पेक्ट से ये लिपिका क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि दीपिका का और लिपिका का बीच में 5 मीटर डिस्टेंस है, अभी भी 5 मीटर है, 1 घंटा बाद भी 5 मीटर है, एंड आफ्टर 3 आवर्स ऑल्सो will remain in the position. मतलब ये लिपिका का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा with respect to दीपिका. सो क्या बोला जाएगा, लिपिका is at rest with respect to दीपिका. Now this लिपिका, try to understand, this लिपिका is in motion. बोलोगे लिपि, अब बोला लिपिका रेस्ट में है, yes, लिपिका रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू दीपिका. अभी समझो लिपिका हो गया, दीपिका हो गया, और दूसरा एक है, ये मार्स है. हाँ, मार्स, मार्स में कौन बैठा है, मार्स में बैठा है नयनिका, नयनिका, ये भी एक नाम है. तो ये नयनिका है, ये नयनिका बहुत सुंदर है, ये नयनिका, नयनिका कहाँ पर है, मार्स में है. अभी नयनिका देखेगा क्या, ये लिपिका तो मोशन में है, तो लिपिका इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू नयनिका, फिर लिपिका इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दीपिका. मतलब एक ही पर्सन और डुअल नेचर. हाँ, यही तो फिजिक्स है. लिपिका इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दीपिका, क्योंकि बोथ आर ऑन अर्थ, ये दोनों अर्थ में है, किसी का पोजीशन किसी का रेस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रहा, दोनों का डिस्टेंस 5 मीटर है, मींस लिपिका इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दीपिका, और फिर ये लिपिका इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू नयनिका. तो नयनिका का रेस्पेक्ट से लिपिका क्या है, मोशन में है, दीपिका का रेस्पेक्ट से लिपिका क्या है, रेस्ट में है. समझ में आया. सेम पर्सन सेम ऑब्जेक्ट, दो नेचर आ सकते हैं, रेस्ट भी हो सकता है, मोशन भी हो सकता है. आई एम एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस बोर्ड, आई एम एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस कैमरा, एंड आई एम एट इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू मार्स, with respect to moon, with respect to sun, with respect to any other object of this universe, any other celestial objects except this earth. So you see, means if we consider earth as a reference frame, if I consider this board is a reference frame, then I am at rest. And if we consider Mars as reference frame, moon as reference frame, then I am in motion. राइट. नाउ यहां पर एक चीज बोलना चाहता हूं, नथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, नथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज एब्सोल्यूट रेस्ट. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली रेस्ट में नहीं है, मैं भी रेस्ट में नहीं हूं, तुम भी रेस्ट में नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इटसेल्फ इज इन मोशन, एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज इन मोशन. सो रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन सराउंडिंग. So definition क्या आएगा, an object is said to be at rest if its position will remain same with respect to the surroundings by the passage of time. टाइम के रेस्पेक्ट से उसका अगर पोजीशन चेंज नहीं होता with respect to कोई स्टैंडर्ड और सराउंडिंग का रेस्पेक्ट से, then it is said to be at rest. And an object is said to be in motion if its position changes with respect to surroundings by the passage of time. Understand? So I am at rest with respect to the surroundings as I am not changing my position with time, and I am in motion with respect to the surrounding because I am changing my position by the passage of time. Right?
सो रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन अगर दिया जाए तो किसका रेस्पेक्ट से देना पड़ेगा? ना तो मून, ना तो मार्स, ना तो कोई अनदर ऑब्जेक्ट। कहां से? विथ रेस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग्स, राइट। सो विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मोशन होता है, विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग रेस्ट होता है। अंडरस्टैंड? मतलब किसी एक को स्टैंडर्ड मानो सराउंडिंग का, उसी का रेस्पेक्ट से बोल दो अपना पोजीशन क्या है। यही तो हुई रेस्ट एंड मोशन। अंडरस्टैंड? ओके, चलो let us try to understand the next topic. नारे 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 ना, तो चलो let us go to the next topic. So types of motion, types of motion. So types of motion बोले तो नंबर 1 ट्रांसलेशनल मोशन आएगा। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, करेक्ट। नाउ ज आएगा ट्रांसलेशनल मोशन। समझूंगा क्या है? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, और आएगा रोटेशनल मोशन। ये तीन समझ लो। रोटेशनल मोशन, rotational motion, try to understand these three: translational motion, oscillatory motion and rotational motion. Translation motion, ये एप्पल करके गिर गया नीचे, ये क्या हुई? ट्रांसलेशनल मोशन। कैसे? एक ऑब्जेक्ट का अगर एवरी पार्ट का इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है in equal interval of time, then it is known as translational motion. I repeat it again. A body is said to be in translational motion if every part of the object covers equal displacement in equal interval of time. जैसे समझ लो ये ये पिंकू है, हाँ ये पिंकू, सब पिंकू का हाथ भी है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा फुश, पिंकू है ये। नाउ पिंकू जब यहां से यहां जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो पिंकू का लेफ्ट हैंड का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट का भी हैंड का भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, हेड का जितना होगा, फीट का भी ऐसा होगा, क्योंकि पिंकू तो ऐसा जा रहे हैं ना। तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैव इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि एक बास मान लो, एक ट्रेन मान लो, एक कार मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है यहां से यहां, तो ये पार्ट का जितना डिस्प्लेसमेंट, ये पार्ट का भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या कहा जाएगा? ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे कि ये बॉडी फॉलिंग, फ्री फॉल और कोई भी फॉल हो जाए, हाँ, तो ऑब्जेक्ट अगर गिरा ये, तो ये क्या हुई? एवरी पार्ट का इक्वल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसीलिए इसका नाम क्या हुई? ट्रांसलेशनल मोशन। A motion of a car, motion of a bike not in circular way, in a straight line. तो ये सारे के सारे क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन। अंडरस्टैंड? नाउ ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन के पहले रोटेशनल मोशन समझा देता हूं तो अच्छा होगा। रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन, अभी ये रोटेशनल में जो बोला था ना, एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अभी समझो, अगर ये सर्कुलर मोशन में होते हैं ना, तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर पाथ फॉलो करे, तो ये आउटर पार्ट जो है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, और जो इनर पार्ट है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। मतलब सब पार्ट का इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जितना आउटर में जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा, जो जितना इन में आऊंगा डिस्प्लेसमेंट इतना ही कमते जाएगा। दैट इज डिफरेंट पार्ट। ये ऑब्जेक्ट को ऐसा घुमा, ऐसा घूमे, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो आउटर पार्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, जो जितना इन में आओ डिस्प्लेसमेंट कम होगा। सेंटर में आ जाओगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। बिकॉज इसीलिए तो कहा जाता है कि यू नो फैन का मोशन, तो आउटर पार्ट ऑफ द फैन उसका क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर।
जितना अंदर आओ आर कमते जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। सेंटर में आर जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, राइट। और इसीलिए रोटेशनल मोशन में जाके समझोगे कि एक फैन का कपक कैसे पकड़ लेते, तो वो भी समझूंगा धीरे धीरे रोटेशनल मोशन में। ओके, तो ये हुई हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इज द वन वेयर द different part of the body have different displacement, outer part of have maximum displacement, जितना इनमें आओ डिस्प्लेसमेंट कमते जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन में आओ जीरो हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये हुई ऐसे ऐसे ये क्या हुई, ये रोटेशनल मोशन। समझ में आ गया? और तो और ऐसा करे, ये क्या हुई, ऑसिलेटरी मोशन। हाँ, तो एक्सरसाइज किया था, तो ये क्या हुई, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ये क्या है, रोटेशनल मोशन, ये करके रोटेट करेगा, हाँ रोटेशनल मोशन। और ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा ऑसिलेटरी मोशन। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, पेंडुलम का मोशन ये ऑसिलेटरी मोशन से। तो ये तीन टाइप ऑफ मोशन बेसिकली डिस्कस किया जाएगा। क्या क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। अंडरस्टैंड? 3 टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर। अंडरस्टैंड? ओके, चलो कोई भी डाउट है तो बोलना, डेफिनेटली बोलना। ऐसा मुंह छुपा के ऐसा नहीं बोलना कि नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो, मोशन इन 1D 2D 3D, हाँ 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन। हाँ बेटा पिंकू, ये पिंकू, हाँ पिंकू, ये डांस कर रहे। ओके, इसका नाम क्या दो, इसका नाम कुछ भी दे दो। ये पिंकू है तो ये रिंकू है, कुछ भी देने से क्या आता जाता है, उसका तो कुछ ही पता चल रहा है। तो ये पिंकू है, पिंकू क्या कर रहा है, एक थ्रेड का ऊपर ऐसा जा रहे, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो एक ही एक्सिस फॉलो कर रहा है। जैसे कि इसका मान लो एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस फॉलो कर रहा है। मतलब जैसे कि ये है उसका, ये रेफरेंस फ्रेम है, उसका स्टैंडर्ड पॉइंट ये है, तो इससे 1 मीटर दूर में है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 5 मीटर है। मतलब टू लोकेट इट्स पोजीशन only single coordinate is required, x coordinate is required and is known as 1 dimensional motion। क्योंकि ये पिंकू जो है ना, पिंकू का मोशन जो हो रहा है, पिंकू का पोजीशन का जो चेंज हो रहा है, ये ओनली विथ रेस्पेक्ट टू दिस वॉल, और इसीलिए पिंकू का मोशन जो है ना, ये क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन। तो motion of an object, motion of Pinku is said to be 1 dimensional motion because he is only changing his position in x axis, only one coordinate system. That is to locate his position, only one coordinate is required, and that is your x coordinate. So motion of Pinku is said to be 1 dimensional motion. Understand na? So motion of पिंकू इज 1 डायमेंशनल मोशन। तो क्या डेफिनेशन होगा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस ओनली विथ रेस्पेक्ट टू 1 कोऑर्डिनेट। हाँ, ओनली 1 कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट का बस एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो इसका पोजीशन पता है, वाई चाहिए नहीं, जेड चाहिए नहीं, क्या है वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसका पोजीशन ओनली एक्स का रेस्पेक्ट से चेंज हो रहा है। समझ में आ गया? अभी आ जाओ रिंकू के पास। अभी रिंकू ऐसे भी जा रहे, ऐसे भी जा रहे, वाओ कैसा डांस कर रहे। हाँ, तो रिंकू का अगर पोजीशन बने तो ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, एक्स भी जाएगा, ये एक्स भी जाएगा, ये वाई भी जाएगा, एक्स हुआ वाई हुआ, ऐसे ऐसे ये डांस कर रहा है। हाँ, तो इसका अगर पोजीशन डिटरमाइन करना चाहिए तो 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए। सो टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ रिंकू यू रिक्वायर 2 कोऑर्डिनेट्स, और जिसलिए रिंकू का मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन कहूंगा।
So motion of Rinku is said to be two-dimensional motion because two coordinate is required. जैसा रिंकू इधर कितना गया, ऐसा कितना गया, x में कितना है, y में कितना है. जैसा ये यहाँ पर है, x से इतना दूर है, y से इतना दूर है, यहाँ पर है, x से इतना, y से इतना. That is you require two coordinate x y. पिंकू के लिए सिर्फ x, right? y 0 z 0, y 0 है, z भी 0 है, और इसके लिए x y. अब भी आया बटरफ्लाई, टंग 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 टंग. तो इसका क्या चाहिए, क्या चाहिए, x भी चाहिए, y भी चाहिए, z भी चाहिए, ठीक ना. ऐसे मान लो, ऐसे रिंकू जा रहे ऐसा, सॉरी ये पिंकू, ओनली x कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड क्योंकि x एक्सिस से जा रहे. रिंकू जो जा रहे ये क्या है, x में भी जा रहे, y में भी जा रहे, ऐसा टन 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 टन, राइट. और ये रिंकू है, रिंकू का मोशन, दैट इज कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड एक्स वाई. और जब अभी बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई क्या करेगा, ये इधर भी आएगा. हाँ एक्स वाई जेड, ये तो दिखा नहीं पाऊंगा तुम लोगों को. तो एक्स है, वाई है, और इधर आ गया जेड कोऑर्डिनेट. कितना कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स वाई जेड, थ्री कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड एंड द मोशन इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन. समझ में आया. तो बटरफ्लाई का मोशन क्या है बोलो, थ्री डायमेंशनल. रिंकू का मोशन टू डायमेंशनल, पिंकू का मोशन वन डायमेंशनल. अंडरस्टैंड, डाउट नहीं, ओके. चलो चलो, तो ये हुई तुम्हारा वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन. ओके चलो. नरे 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 न. अभी तो आया कुछ क्वेश्चंस. देखो जो भी वीडियो, एवरी वीडियो में क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस का सारे क्वेश्चंस का आंसर विद इन 2 days मुझे मिलना चाहिए. 2 days के अंदर मिलना चाहिए क्वेश्चन. ए नंबर 1 क्वेश्चन क्या है देख लो, अच्छे तरह से समझ लो. एक में भी बोल दूंगा तुम लोगों को. ओके चलो, तो ये है नंबर 1. कैन एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम. सेम टाइम में मोशन में भी होगा, रेस्ट में भी होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या. सोच लो, सोच लो, आंसर दे देना, मैं बता देना, बोल देना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलूंगा. ओके नाउ यू सी, वी है क्वेश्चन नंबर 2. गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल फेनोमेना इन व्हिच अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट मास. ना, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पॉइंट मास, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पॉइंट मास. ऐसे कुछ फिजिकल फेनोमेना है जिसका रिस्पेक्ट से पता चलता है हाँ आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है. ऐसे तो आर्ट का अगर ड्रॉ किया जाए, मैं बार बार ड्रॉ करते ऐसा है आर्ट है, इतना है करते, ऐसा लगता है कि मेरा हाथ में घुस जाएगा, ऐसा आर्ट है. लेकिन आर्ट तो नॉर्मल साइज है. हाँ तो ऐसा क्या फिनोमेनन है जिससे पता चलता है कि आर्ट बहुत बड़े है. हाँ आर्ट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. कैसे पता चलता है, एक्लिप्स के टाइम में, क्योंकि आर्ट इतना महान है, अगर दो ऑब्जेक्ट का बीच में आ गया तो सनलाइट भी नहीं आ पाते. हाँ तो तब मानो क्या, आर्ट से भी, आर्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर पॉइंट होता तो लाइट आ जाता, लाइट को भी स्टॉप कर देते वो जब बीच में खड़ा होते, दीवार जैसा. हाँ तो ये आंसर लिख के देना मुझे, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया. और ए ऑब्जेक्ट, ए बॉडी इज एट रेस्ट इन ए फ्रेम विद इन व्हिच इट इज फिक्स्ड. ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इन ए फ्रेम इन व्हिच फिक्स्ड, in which it is placed is fixed. जिस फ्रेम में है उसी फ्रेम का रिस्पेक्ट से ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है. क्यों है, कैसे है, एक्सप्लेन करना, कर देना क्या है. ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस दिया वो क्वेश्चन सारे के सारे, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मैं एक्सप्लेन किया, तो क्या है. हाँ चलो, तो चलो चलते हम, चलते. हाँ चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते. क्या रे बाबा, नहीं चलो. तो लेट अस गो टू द लास्ट. खत्म हो गया, और 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स रिक्वायर्ड. ओके चलो. पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये क्या है. ओके तो देखो ये जो है ना, अच्छा बोलो इसमें पॉइंट कौन है, इसमें पॉइंट कौन है. तो तुम बोलोगे सर ये पॉइंट है, पॉइंट मास है, ये चुना मैंने. हाँ मैं बोलूँगा ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट है. तुम बोलोगे सर सिर्फ बार बार उल्टा ही बोलते हो आप. हाँ मैं बोलूँगा ये पॉइंट है, नो इट इज़ नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. हाँ
पॉइंट ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तुम बोलोगे सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ यही पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरा बात को, यही पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तुम बोलोगे नहीं सर, हाँ लेकिन ये पॉइंट है, क्यों, कैसा है, समझ जाओ, समझ जाओ। फिजिक्स से कुछ सब कुछ पॉसिबल होता है। ये जो है ना, इसका साइज है, इसका ये मुखमंडल जो है ना, ये कितना है, पकड़ लो, आई ला, हाँ ये है, ये सपोज पकड़ लो क्या 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 है, एक्स है, समझो ऐसा एक्स। और इसका जो है ये जो है ना, इसका जो साइज है ये वाई मान लो। अभी एक इसको अगर पोजीशन डिटरमाइन किया, इसका मोशन अगर स्टडी किया जाए और यहां से मेजर किया जाए, जैसा कि z डिस्टेंस है, और इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो ये बोला जाएगा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी लग रहा है, समझा दूंगा। और इसका अगर यहां से मेजर करें फ्रॉम हियर, ये है या कुछ भी दे देते, x हो गया, y हो गया, z हो गया, कुछ भी दे देते हैं, जैसा लैम्डा। अब बोलोगे लैम्डा क्या है, ओके लैम्डा तो लैम्डा ही है, ये लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा इज इक्वल टू y या लैम्डा इज वेरी क्लोज टू y, ऐसा अगर होता है, हाँ लैम्डा इज नॉट इनफ लार्ज एज कंपेयर टू y, तब कहा जाएगा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, ये समझना है। An object is said to be a point object if the distance covered by it is very very large as compared to its own size. इसका जितना साइज है, इससे अगर लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, तो इसको कहा जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसा मान लो इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का है, और ये कवर किया 5 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेंटीमीटर का रेस्पेक्ट से, ये भी क्या बोलेगा, पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। बिकॉज ये लार्ज डिस्टेंस 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया इन ए गिवन टाइम और इंटरवल ऑफ टाइम। और ये बेचारा क्या हुआ, इसका भी 10 सेंटीमीटर ही है, नहीं इसको और भी कमा दो, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और ये ट्रैवल किया 1 सेंटीमीटर, हाँ सिर्फ 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर जो है ना, ये ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट है। दैट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट या नहीं, ये डिपेंड करते कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे इन ए गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो मैं भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं, अगर मुझे बहुत दूर से अगर मेजर किया जाए, मेरा पोजीशन डिटरमाइन किया जाए, और मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हूं अगर यहां से मेजर किया जाए। अर्थ भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये जुपिटर से किया जाए, और अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर कहीं अर्थ का कहीं ये से बोलो अर्थ इतना बड़ा है, मेरे रेस्पेक्ट से भी कितना बड़े है, लेकिन मून या जुपिटर कहीं से, जैसे कि अर्थ ड्रॉ करो तो ये है, मून भी तो ऐसा मून है, लेकिन मून क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमें लग रहा है कि मून एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन मून में जो रहते हैं वो बोलेगा नहीं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तब पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ना, ये तो किसका रेस्पेक्ट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे एज कंपेयर टू इट्स साइज इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं नजरिया का बात, मतलब किसी का रेस्पेक्ट से ये पॉइंट है, किसी का ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट से वो पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हो रहे, फिर से एक बार बोल रहे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इज मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया? सो we'll discuss scalars and vectors, all these things on our next class. आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।